and effective communication for role of soft skills and effective communication for successful entrepreneurship under the institutional development project of National Higher Education Program of ICR funded by the World Bank. So I think it is a very good initiative under this NAHEP by the ICR that they have provided the university with a sufficient grant to uplift the or for the capacity building of students as well as the faculty of the university. I welcome the students of College of Dairy Science and Technology who are participating in this webinar and across the, you can say, year, first year, second year, and third year, as well as final year. So about Mr. Arindam Dev, briefly I would like to introduce today's speaker, Mr. Arindam Dev. So he is Masters in Business Administration from Sikkim Manipal University, having PG Diploma in Business Management, specialization in Retail Management from Birla Institute of Management Technology, New Delhi, and having Bachelor's degree in Commerce with Honors in Management from Assam University, Silchar, which is a central university. So he is having over 21 years experience in teaching, academic institute building, corporate licensing for students, placement, internship, and live projects. He is also having professional experience in planning and managing business operations, virtual classrooms, and e-learning, teaching students management and marketing initiatives. So presently, he is working with Birla Institute of Management, Noida, Delhi, and he is teaching subjects like retail management, brand management, luxury management, customer relationship management, sales and distribution management, and retail entrepreneurship. So I will not take much time. At the same time, I also welcome my colleagues, my seniors, and other faculty members if they are present right now. So now I request Mr. Arindam Dev to continue with the today's lecture on role of soft skills and effective communication for successful entrepreneurship. Please, Arindam ji, now you can continue with your presentation. Thank you. So, thank you, Dr. Amandeep Sharma. He had given a pretty elaborate introduction about me. So, very quickly coming to the topic, I had made a 22-slide presentation to interact with the students, tell them the importance about the soft skills and the communication and how it's so much required for a winning entrepreneurship qualities. But prior to this, I thought we must get into one single page. मैं generally postgraduate students को पढ़ाता हूँ and I'm teaching them for last 17-18 years now, since 2004. So मैं जब भी एक student से interact अपने class में students से interact करता हूँ, they are already in some kind of agreement in my concepts. So in our concepts. So मैं चाह रहा था कि मेरे concepts जो हैं in entrepreneurships regarding an entrepreneur, मैं वो चीज आप लोगों को एक बार बताऊं. So before I go to the presentation, मैंने कुछ एक दो पेज आज दोपहर को बैठ के लिखा था और मैंने सोचा कि क्यों ना वही एक दो पॉइंट से शुरू किया जाए जहां पे हम सभी को बता सकें what does an entrepreneur mean. So
अभी ऑलमोस्ट 59 पार्टिसिपेंट्स हैं, जिसमें अगर हम प्रोफेसर्स एंड स्टाफ को छोड़ दें, सो आई बिलीव देयर शुड बी अराउंड 55 स्टूडेंट्स. सो इस बीच एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, क्योंकि मैं अगर फुल फ्लेजेड क्लास पढ़ाता 30 आवर्स का 50 आवर्स का, तब मैं आपको ग्राउंड रूल सेट कराता, बट क्योंकि हम एक छोटा सा इंटरेक्शन कर रहे हैं, मेरा सिर्फ आपको एक ही हम्बल रिक्वेस्ट है. अगर आपको लगता है, इफ यू फील कि यू नो मैं जो भी कुछ कह रहा हूँ, इफ इट मेक्स सेंस टू यू, देन व्हाट आई वुड रिक्वेस्ट इज, कहीं पे भी आप इस पूरे डिस्कशन में अपने आप को अनम्यूट करके अगर कुछ भी मुझे कुछ भी सवाल पूछना चाहें, बिकॉज ये डिस्कशन एक वेबिनार अपने जगह में तो ठीक है, बट अगर ये सारा कुछ करने के बाद में एक भी स्टूडेंट्स को एंटरप्रेन्योरशिप के जर्नी में मोटिवेट कर सकूं, या एक नॉच ऊपर ले जा सकूं, हैंड होल्ड कर सकूं, सो आई वुड थिंक that would be a real success. So please unmute your mic whenever you feel like, ask me a question, and we'll make sure that we are able to answer you correctly. So just quickly, few thoughts regarding entrepreneurship. If someone asks me what is an entrepreneurship, it doesn't mean somebody a person who runs a business is an entrepreneur. अगर आप entrepreneur का true sense देखो, is entrepreneurship is a mindset to grab and control over a particular situation. So entrepreneurship, अगर आप wider gamut में देखो, so it is not just related to a business, it's there in our everyday life. I was just sharing with my mom. I'm not at Himachal. I came to see my mom. I was just sharing my mom that to me my mom is one of the finest entrepreneur, because उन्होंने अपने लाइफ में उन्होंने जो भी कुछ किया, जो भी सिचुएशन उनके सामने आया, she grabbed the situation, took a control over it, and and hold it tight, make sure that she proceed from one level to the other. So entrepreneurship doesn't mean only a business mindset. It's there, it's part of our life. So that's how I look at entrepreneurship. Agar, if you look at entrepreneurship, only the one thing that stops any individual to be a part of, to be an entrepreneur, is he or she himself or herself. Nobody can stop anyone to be an entrepreneur. Money and resources are the last one to be counted for. अगर किसी के पास money resources नहीं है, it doesn't matter. Or it's all about how you can what's going inside your mind. Honestly, agar anything which is stopping anyone from being an entrepreneur is he or she herself or himself. So that's what I was trying to these are my starting comments. So if this is a problem, an entrepreneur is always there to find a solution. So I have given a problem statement. Now let us talk about the solution. What could be the possible solution to all that I said now? Possible solution is to control your life the best possibly you can. I mean, you have to control the situation that you are at present. So you have to do that. Probably you have to control your mind. To control your mind
probably you need to be more aware of things that are happening around. You must become more to get more. अगर आपको जिंदगी में कुछ कुछ ज्यादा चाहिए अपनी जिंदगी में, if you are not happy with what happening around you, you must try to be more than what you are at present. So ये भी एक जिंदगी का बहुत बड़ा सच है. So एंटरप्रेन्योरशिप के लिए अगर आप देखो कि अगर कोई मुझे पूछे कि क्या सॉफ्ट स्किल्स चाहिए, क्या कम्युनिकेशंस चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए यू नीड टू बी अ परफेक्ट ह्यूमन बीइंग. एंड उसके लिए कोई यूनिवर्सिटी डिग्री और यूनिवर्सिटी डिप्लोमा उसको उस लेवल तक नहीं पहुंचाता. उसके लिए बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं जो हम एक के बाद एक डिस्कस करेंगे. एंड आई थिंक the soft skills and the communication part will follow along with this. 99% of us, many of us, are just focused on where we are and how can we comfortable in our present situation. Lekin we forgot the part ki the present, being comfortable in this present situation may not lead to where we can possibly have to. So हमें कहाँ जाना है? अगर हम प्रेजेंट जगह पे जहाँ पे हैं हम वहां पे अगर हम बहुत कंफर्टेबल हो गए और बहुत अपने आप को कंफर्टेबल करने की कोशिश किए, सो शायद से हम उस जगह पे नहीं पहुंच पाएंगे. इट्स नॉट फिलोसॉफिकल, इट्स द फैक्ट ऑफ लाइफ. So, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग जो भी जहाँ पे हो, आप अपने because of this COVID situation, I'm sure आप लोग अपने घर पे अपने कंफर्टेबल रूम से कहीं एक कंफर्टेबल लोकेशन से आप मेरे साथ इंटरेक्ट कर रहे हो. So, look around every object. जो भी आपके आसपास जो भी चीजें हैं, जो भी चीजें बनी हुई है, जो एक इंसान ने बनाया है, be it a pen, be it a mobile phone, be it papers, be it anything. Remember one thing, वो जो चीज जो आपके सामने दिख रही है, which is a non-living thing, जिसको एक इंसान ने बनाया है, it's been created twice. It's not just one creation. It's been created twice. पहली बार in the mind of that creator. वो जो क्रिएटर है उसने अपने दिमाग में उस बारे में सोचा था कि ये चीज ऐसे बनेगी, राइट? फिर दूसरी बात उसी सोच को उसने इम्प्लीमेंट किया, उसको रियलिटी में लेके आया, राइट? सो इफ यू लुक एट द सिचुएशन, मुझे ऐसा लगता है कि there are infinite creations in our mind, but there are very limited implementation of those creation in our mind to the reality. So आप अगर अपनी जिंदगी में so हमें अपना सोच, जो चीज हम सोच रहे हैं, वो सोच हमें कहीं पे भी ले जा सकता है. सो कोई भी सोच वियर्ड नहीं है. हम जो कहते हैं कि ये सोच हमारे हिसाब से नहीं है या ये सोच वियर्ड है, सारे वियर्ड सोच ही क्रिएटिविटी का जेनेसिस है. वहीं से ही वो क्रिएशन होता है. सो हर वियर्ड सोच को सेलिब्रेट किया करो, हर वियर्ड सोच को सेलिब्रेट करो और सोचो कि अगर ये मेरे दिमाग में ये सोच आई है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इससे कुछ बहुत अच्छा कुछ बन सकता है. सो दिस इज, ये सोच एक एंटरप्रेन्योर की रहती है. एंटरप्रेन्योर ये सोचता है कि अगर ये सोच, कोई भी आइडिया मेरे दिमाग में आया है, उसका जो रियलिटी में इम्प्लीमेंटेशन होगा वो
वो एक इस दुनिया में नया कुछ क्रिएट करके लेके आएगा। दैट्स हाउ थिंग्स हैपन। सो आपके आसपास जो भी चीजें हैं वो एक्चुअली में दो दो बार क्रिएट हुई है, एक बार क्रिएटर के दिमाग में, दूसरी बार रियलिटी में। सो अगर आप एंटरप्रेन्योर हो, अगर आप क्रिएटर हो, तो आपको अपने दिमाग में ये नई सोच, कोई भी चीज सोच को सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि कहीं ये एक नया इन्वेंशन का जेनेसिस तो नहीं है, राइट? अगर इस बीच आप लोग कोई भी अनम्यूट करके मुझे अपने डिस्कशन में कुछ बोलना चाहे तो मुझे बता सकते हैं, तो आई एम हैप्पी टू टेक सम क्वेश्चन। चलिए, मैं एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर और थोड़ा सा डीप डाइव करना चाहता हूँ, सो दैट यू नो ये जो ये जो सॉफ्ट स्किल्स चाहिए, इसका जवाब आपको आपको ये सेशन के बाद जरूर आएगा। क्योंकि मैं आपको सिर्फ वो पॉइंट्स नहीं बता रहा हूँ कि ये सॉफ्ट स्किल चाहिए, वो सॉफ्ट स्किल चाहिए, नहीं। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं, और आप खुद आफ्टर दिस सेशन, मुझे लगता है अब खुद हमें बताएंगे कि क्या क्या सॉफ्ट स्किल्स चाहिए। मैं कैसे सबको देख सकता हूँ? सॉरी, चलो ठीक है, विल गेट इनटू इट लेटर। एंटरप्रेन्योरशिप ये एक मैंने कहीं किसी से सुना था और मुझे ये चीज बहुत पसंद आई। एंटरप्रेन्योरशिप एक क्लब है which is reserved and it's not for everyone. हर कोई उस क्लब में अपने मन मर्जी से एडमिशन नहीं ले सकता। ये एक रिजर्व्ड है कुछ लोगों के लिए, जिनके एक स्पेशल एट्रीब्यूट्स होते हैं। वो कहीं यूनिवर्सिटीज के डिग्री में नहीं आते, वो कहीं कोई स्किल डेवलपमेंट के सेशंस में नहीं आते। दिस इज समथिंग बियॉन्ड देन दिस। और उसके लिए बहुत सारी चीजें करनी होती है, बहुत सारी चीजें अपने अंदर इनवाइट करनी होती है। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये क्लब में आने के लिए आपको, मुझको और सभी को अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। ऐसे ही कोई इस क्लब में एंट्री नहीं कर सकता। और इस क्लब में एंट्री करने का जो फर्स्ट डोर ओपनिंग है इज समथिंग रिलेटेड टू overcoming your fear. Sorry, शाम को ना around 5:30 I love to have my cup of tea, so sorry I'm sipping in between, so please don't mind. So I was talking about the first door which you have to open for yourself to get into this club. So the first door is getting over your fear. ये जो दिमाग है हमारा, वो हमारे साथ तरह तरह के खेल खेलता है। बहुत लोगों से आपने ये बात सुनी होगी। ये बात मुझे भी इस I also believe in in the statement, because our mind play multiple tricks with us, and one of the major trick जो माइंड हम सबको ओवर पावर करता है, वो है द वर्ड फियर। हम लोग ये सोचते हैं कि फ्यूचर में ये हो जाएगा, इस बात का हमें फियर है। फ्यूचर किसी ने नहीं देखा, फ्यूचर किसी ने आपके लिए लिखा नहीं, और हमारा दिमाग सिर्फ फ्यूचर के अनसर्टेनिटी के ऊपर हमें होल्ड बैक करता है। आपको पास में जो हो गया है, पास में आप गाड़ी चला रहे थे, एक एक्सीडेंट हो गया, उस बात का अभी आपको फियर नहीं है। आप आज इस समय प्रेजेंट में हो,
और आपने इस प्रेजेंट में, मैं आपके साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ लाइफ में, सारी चीज उस हिसाब से है जैसे हमने इस समय चाहा था अपने लिए। सो हमें इस बात का भी फियर नहीं है, हमें सिर्फ फियर है ये फ्यूचर का, कि फ्यूचर में क्या हो जाएगा। सो अगर आप अपने दिमाग में ये फ्यूचर का अनसर्टेनिटी, द फियर ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ योर फ्यूचर, अगर उस चीज को आप कंट्रोल कर सको, देन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के ये एक्सक्लूसिव क्लब में आपका फर्स्ट डोर ओपन हो जाता है। एंड आई थिंक दिस इज द टफेस्ट। शायद से हम में से कोई भी, बहुत कम लोग हैं इस दुनिया में जो हम फियर को ओवरकम कर पाते हैं, कि हम ये नहीं, हम ये कह सकते हैं कि वी डोंट हैव एनी फियर। इंसान को किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी चीज से फियर होता ही है। बट आई एम सेइंग ओवरऑल, ओवरऑल अगर आप अपने कैरेक्टर में, अगर अपने एटीट्यूड में, अगर आपके डे टू डे वर्किंग में आप थोड़ा सा फियरलेस हो, कि आपको ये, आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंट हो कि कुछ भी हो जाए मैं तो ये कर ही लूंगा। सो ये सोच जो एक बार आपके पास आ गई, तो आपके लिए एंटरप्रेन्योरशिप का फर्स्ट डोर ओपन हो जाता है, एंड आपको एक चांस मिल जाता है अपनी जिंदगी में अपने फ्यूचर को लिखने के लिए। कोई 15-20 आदमी आपके जिंदगी में, वो आदमी हो औरत हो, वो आपकी जिंदगी में डिसाइड करे कि आपकी जिंदगी कैसे चलेगी, क्यों चलेगी, कहाँ, कैसे आपकी जिंदगी टर्न लेगी। ये चीज हम सभी के साथ है, लेकिन ये चीज अगर हम इसको ओवरकम कर सके, तो आई थिंक ये हमारी जिंदगी का बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट मोमेंट होगा। और एक चीज जो मुझे बहुत ज्यादा स्केयर करती है, एंड often I, often I, often I, feel scared about it, is uh, is is the is the regret. Uh, I often go and interact with people who have more number of, I mean, elderly people, जिनके पास मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस है। मैंने कॉर्पोरेट्स में, वेरियस इंडस्ट्रीज में काम किया है। आई वर्क विद द मीडिया, आई वर्क विद द लॉजिस्टिक्स कंपनी, आई वर्क विद द टेलीकॉम कंपनी, आई वर्क विद फाइनेंशियल सर्विसेज। सो मैं एजुकेशन सेक्टर में काम किया काफी समय तक। मैं जब भी किसी किसी से इंटरेक्ट करता हूँ विद टू गेट देयर विजडम, I often find they talk about, their misses in their life. किस चीज वो मिस कर गए, their, वो कौन सा बस मिस कर गए, क्या चीज वो करते करते रह गए। सो वो चीज, वो जो वो जो उनकी रिग्रेट्स हैं, वो मैं उससे सीखता हूँ। लेकिन वो रिग्रेट्स मुझे कभी कभार मेरे अंदर फियर भी डेवलप करता है। सो आप लोगों के विजडम जरूर लो, लेकिन उनके रिग्रेट्स को एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से लेना शुरू करो, ताकि वो चीज आपको ओवर पावर ना करे। सो देयर आर फ्यू थिंग्स आई थिंक विच इज वेरी वेरी क्रिटिकल टू एंटरप्रेन्योरशिप। सो स्लाइड में, प्रेजेंटेशंस में मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं, मैं बता सकता हूँ कि स्टेप वाइज कैसे आप एंटरप्रेन्योरशिप को अप्रोच करोगे। मैं कुछ अपने स्टूडेंट्स के मेंटरशिप प्रोग्राम में भी काम करता हूँ, तो मैं उनके बिजनेसेस को भी थोड़ा बहुत अपने समझ के हिसाब से मैं उनको कंसल्ट करता हूँ। बट
the biggest problem that I found is कि लोग दूसरों के एक्सपीरियंस को अपने ऊपर ओवरपावर करना शुरू कर देते हैं। मैं जब कोई भी बिजनेस खुद से नहीं किया हूँ, सोचो मैंने कोई कोई एक किराना वाला शॉप मैंने नहीं चलाया है, तो मैं बहुत सारे चीजें नहीं जानता हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है, और मैंने उनको फ्लैग ऑफ नहीं किया है पहले कि ये सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। इससे एक एडवांटेज भी है लोगों का, इससे एडवांटेज भी है। एडवांटेज ये होता है कि मैं अननेसेसरली लोगों के दिमाग में फियर नहीं रेज करता, एंड फियर एक्चुअली held back actually hold us back for taking decisions. Entrepreneur take fearless decisions. आपको decisions लेना है, right time पे decision लेना है, and taking right decision is a habit. आपको ये habit अपने अंदर inculcate करना है कि कुछ भी हो आप decisions लोगे, सही डिसीजंस लोगे, सही टाइम पे डिसीजंस लोगे, ये एक आदत होती है। और डिसीजंस सही और गलत में एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का रहता है। जैसे आप लोग काफी लोग स्पोर्ट्स में भी हो, क्रिकेट खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो, सो एक फास्ट बॉलर को अगर आप अगर उसको सिक्स मार रहे हो या बाउंड्री मार रहे हो, द वो सिक्स और बाउंड्री के बीच में बैट का जो टाइमिंग है, इट्स जस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। हमें लगता है कि क्या बैट्समैन जो 8th नंबर में आया या जो 9th नंबर में आया, वो ये फास्ट बॉलर को फेस नहीं कर पाया, बोल्ड हो गया। लेकिन एक्चुअली में जब आप खेलने जाओगे, वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का परफेक्शन आपको सिर्फ करते करते, प्रैक्टिस करते तभी आता है। सो राहुल द्रविड़ इज राहुल द्रविड़ बिकॉज ही हैव वो अपने वो शॉट को उस लेवल तक उसने परफेक्शन तक लेके आया है। सो मुझे ऐसा लगता है कि टेकिंग द राइट डिसीजंस, टेकिंग डिसीजन इज एन हैबिट, और हमें ये हैबिट को अपने अंदर इनकलकेट करना चाहिए, और जितना जल्दी हो सके अपनी जिंदगी में उतना जल्दी ही ये हैबिट को हमें इनकलकेट करना चाहिए। सो दिस इज वन ऑफ द सॉफ्ट स्किल्स, टेकिंग राइट डिसीजन, टेकिंग डिसीजन ऑन टाइम is is a habit that is a skill that you have to earn over a period of time. Second चीज जो मैं आपको कहूंगा is start accepting the mistakes. अगर आपसे कोई गलती हुआ है, या आप कुछ काम करते करते जो चीज गलत हुआ है, आपको वो मिस्टेक्स आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। आपको वो मिस्टेक, जितने बार आपने वो मिस्टेक डिफेंड किया, उतना नंबर ऑफ टाइम्स वो मिस्टेक आपकी जिंदगी में दोबारा होगा। एंड ये लाइफ लेसन्स हैं। ये शायद से यहाँ पे बैठे हुए प्रोफेसर ने अनगिनत बार आपके क्लासेस में ये कहे होंगे, यही चीज कहा होगा कि मिस्टेक को एक्सेप्ट करो, पहले मिस्टेक को एक्सेप्ट करो, मिस्टेक ऑटोमेटिकली करेक्ट होके अपने वो आप दोबारा कमिट नहीं करो। लेकिन हम ह्यूमन बीइंग्स में ये एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है, वी कीप ऑन जस्टिफाइंग दोस मिस्टेक्स। आप अपनी जिंदगी में वो गलती बार बार करो, आपको उसका ब्रण सहना पड़ेगा। लेकिन आप बिजनेस में सेम मिस्टेक करो, बिजनेस आपको दोबारा मौका नहीं देती। आपको एक गलती का आपको ज्यादा से ज्यादा एक बार या दो बार आपको मौका देगी, तीसरे बार वो बिजनेस इज सो सेंसिटिव, इट विल क्रैश लैंड, खत्म हो जाएगा वो बिजनेस। सो बिजनेस के बारे में
ये सेंसिटिविटी आपको लानी पड़ेगी, यू नो, स्टार्ट एक्सेप्टिंग योर मिस्टेक्स। बोलो आपने गलती किया है, आई फेल्ड, नाउ I learned from my mistake and I won't commit it again. आप देखो, आप वहीं से आप ऊपर की तरफ चलना शुरू कर दोगे। ये आपके पर्सनल लाइफ में भी जितना ट्रू है, आई थिंक कई गुना ज्यादा पर्सनल लाइफ में आपको मौके बार बार मिलते हैं, बट शायद से बिजनेस में ये मौके आपको बार बार नहीं मिलते। सो आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू माई, जो मैंने देखा है, सीखा है इसमें। हर बार एक नया एक्सपीरियंस आएगा, आप जब भी इस तरीके की सिचुएशन फेस करोगे, जब भी आप फिसल के गिरोगे, जब भी आप गलती करोगे, आपको एक नया एक्सपीरियंस आएगा। लेकिन उस समय ये चीज भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपने आप को डिमोटिवेटेड ना करो। आपको आप सीखो इस चीज से एंड देन टेक ऑफ। जब भी कोई प्रॉब्लम आता है, आप अपने दिमाग में सोचना शुरू करो कि दिस इज समथिंग वेयर आई कैन अर्न मिलियन। जैसे आप लोग पंजाब के डिफरेंट लोकेशन में हो, सो पंजाब में जैसे जो भी प्रॉब्लम है, सोचो रोड्स खराब है कहीं पे, सो think about an innovative idea जहाँ पे गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट इंटरवेंशन कम हो, रोड ठीक हो, और वहां से आपको पैसे आना शुरू हो। कैसे होगा मैं नहीं जानता, एक वियर्ड थॉट है, उसके बारे में सोचना शुरू करो। सोचो नालियां, ड्रेनेज कहीं पे ठीक नहीं है, तो उस सिटी के उस प्रॉब्लम को किस तरीके से आप किस तरीके से आरसीसी सीमेंटेड ड्रेनेज सिस्टम बनाओ, और वहां से रेवेन्यू किस तरीके से, आई एम सॉरी, वहां से रेवेन्यू किस तरीके से आप कलेक्ट कर सको, इसके बारे में सोचो। पराली के बारे में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पंजाब में, और लास्ट 10 सालों में उसको बहुत बड़ा पॉलिटिकल एंड सोशल इशू बनाया गया है। अब उसका एक सोल्यूशन निकालो एंड उससे कोई रेवेन्यू मॉडल निकालो। रेवेन्यू मॉडल निकालना बहुत प्रॉब्लमेटिक नहीं है, कोई भी चीज का रेवेन्यू मॉडल निकल सकता है, लेकिन अगर आप उस प्रॉब्लम को एड्रेस करते, तब जाके ये रेवेन्यू मॉडल बहुत इजीली बन सकता है। मुझे बहुत मजा आता है एमबीए स्टूडेंट्स और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स से बात करने में, पर्टिकुलरली बिकॉज वहाँ पे स्टूडेंट्स आर क्वाइट विद एनालिटिकल माइंड्स। उनके पास वो सोचने के साथ साथ चीजों को एनालाइज करके उसका सोल्यूशन निकालना जानते हैं, और उनको ट्रेन किया जाता है उस तरीके से। आई एम श्योर आपके कॉलेज में भी इस तरीके का ट्रेनिंग होता होगा, जहाँ पे आप लोग को आपके दिमाग को ट्रेन किया जाता है कि आप कोई भी प्रॉब्लम का किस तरीके से सोल्यूशन निकालो। सो be it a social problem, be it an infrastructure problem, be it a problem, civic problem, be it a family thing. फैमिली थिंग इन द सेंस, घर पे भी आपके आसपास जो इकोसिस्टम है, वहां पे भी एक आध प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो। कोरोना इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ना। सो कोरोना का स्कैनिंग, एयरपोर्ट से आते जाते आपको एक, आप एयरपोर्ट में कहीं पे लैंड किए, इसके बाद आपको 3 घंटा स्क्रीनिंग और सारा प्रॉब्लम्स, और उस तरीके से आपको यू हैव टू गो थ्रू द एंटायर प्रोसेस फॉर 3 आवर्स। ये एक प्रॉब्लम है। क्या इसका कोई सोल्यूशन आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या वर्चुअल रियलिटी या ऑगमेंटेड रियलिटी के थ्रू आप ये कुछ निकाल सकते हो इसका प्रॉब्लम? थिंक अबाउट इट, पॉसिबली यस। आप क्या ऐसा एक ड्रोन बना सकते हो जो लो फ्लाई करके आपके सर के ऊपर से स्कैन करते हुए चले जाए, आइडेंटिफाई करेगी इस बंदे का वो बीमार है, और उसको
किस तरीके से सेक्लूड किया जाए, उसके आसपास लोगों को किस तरीके से सेक्लूड किया जाए। थिंक अबाउट इट, सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस हैं, और ये सॉल्यूशंस है ये हमें ढूंढने हैं। और अगर हम ये सॉल्यूशन ढूंढे तो हर एक सॉल्यूशन कैन मेक अस मिलियनियर। कोई एक प्रॉब्लम, कोई एक सॉल्यूशन जो इस दुनिया में सिर्फ आपके पास है, यू आर मेकिंग मिलियंस आउट ऑफ। मैं एक बिजनेस मैनेजमेंट का फैकल्टी हूं, तो मैं हर चीज में पैसे देखता हूं, और पैसे से चीजों को भी वे करता हूं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर एक प्रॉब्लम हमारे लिए $1 million अपॉर्चुनिटी है। सो ये मेरा पॉइंट था। सो इट कुड बी एनीथिंग। आज टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ऑगमेंटेड रियलिटी एक ऐसे लेवल पे पहुंच चुका है जहां पे हर किसी को बहुत सारी चीजें करने का और अचीव करने का उनके पास अपॉर्चुनिटी है। सो द डेली प्रॉब्लम, कुछ भी क्या टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर और आईटी सब मिलके हमारे डेली प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ सकते हैं। जो इतने सारे गांव में और शहरों में इतने सारे कैटल्स रास्ते में आ जाते हैं, उसका एक सलूशन ढूंढ सकते हैं। कैन यू थिंक ऑन दोज टर्म? क्या हम यू नो जो जो चीज हम आर्टिफिशियली उनको, कोई भी चीज, कोई भी, find a problem and go deep dive into it, try to find a solution through technology। क्योंकि आज अगर आपने कोई भी प्रॉब्लम को स्मार्टली व्यू नहीं किया है, स्मार्टली व्यू इन द सेंस, जो चीज आपके कस्टमर्स एक्चुअली नाउ दे आर very smart with their smartphones, with the internet on their devices, with internet of things everywhere। सो आपको हर एक प्रॉब्लम को स्मार्टली एड्रेस करना है, हर एक सोसाइटल प्रॉब्लम को स्मार्टली एड्रेस करना है, हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम को स्मार्टली एड्रेस करना है। सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू मीन बाय a smart solution। अब आपको कॉन्फिडेंट रहना है इवन एट द टाइम ऑफ डेस्परेशन। आई मीन कोविड सिचुएशन इज ए रियल डेस्परेट सिचुएशन। बहुत सारे जॉब जा रहे हैं। क्या हम ऐसा कुछ, जॉब्स आर रियल प्रॉब्लम ऑफ दिस कंट्री एंड प्रोबेबली ऑफ दिस वर्ल्ड। तो क्या हम जॉब्स रिलेटेड कोई सॉल्यूशन निकाल सकते हैं कि लोगों को, जिनके पास आज के दिन में एक हार्श रियलिटी ये है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक जगह में ऐसा नहीं कि जॉब नहीं है, जॉब है, लेकिन सही इंसान जिसके पास वो एबिलिटी है, वो कैपेबिलिटी है, जो जिसके पास वो इंटेंट है, वो उस जॉब में नहीं है। कोई और जिसको वो जॉब किसी भी कारण से मिला है, वो उस जगह पे है। मैक्सिमम जगह में, बहुत एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में हमारे पास टफ पैरामीटर्स हैं टू गेट एन एंट्री। इसलिए शायद से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इस चीज से, या डॉक्टर्स इस चीज से अछूते रह गए। बट बाकी जगह पे यू नो देयर इज अ ग्रेट मिसमैच बिटवीन इंडिविजुअल एबिलिटी एंड द जॉब रिक्वायरमेंट। सो क्या ये चीज हम कहीं पे भी हम इस चीज को एड्रेस कर सकते हैं? फाइंड अ सॉल्यूशन विद यूजिंग आईटी, यूजिंग एआई, यूजिंग all the latest technologies। So कुछ भी हो सकता है। I'm saying हर weird idea एक business opportunity बन सकता है। I may not make sense to most of you, but अगर in अच्छा अभी 50 ऑड पार्टिसिपेंट्स हैं, अगर ये 45 ऑड लोगों में भी आउट ऑफ ऑल दिस ये एक वियर्ड आइडिया उनको अच्छा लगे, तो मुझे ऐसा लगता है उनमें से किसी एक को भी अच्छा लगे। हो सकता है कि एक नया कोई इनोवेशन आ जाए हमारी जिंदगी। मनी मेकिंग इज अ टैलेंट।
वो हर किसी पता नहीं हमने अपने सोसाइटी में मनी मेकिंग को एक डेमन की तरह बना दिया। जो आदमी पैसा कमाता है वो दूसरों को दबा रहा है, वो दूसरों को उसको सप्रेस करके ही पैसे कमा रहा है। बट ये हमेशा से सच नहीं है। वो हमारे पुरानी मूवीज में ऐसे दिखाया जाता था, बट एक्चुअली में मनी मेकिंग इज अ टैलेंट। जैसे कोई भी टैलेंट होता है, हर क्रिकेट में टैलेंट होता है, स्पोर्ट्स में टैलेंट होता है, कोई भी चीज में टैलेंट होता है। उसी तरीके से मनी मेकिंग इज ऑल्सो एन टैलेंट, एंड इट्स नॉट दैट इजी। और ये सब की बस की बात नहीं। So, जो आदमी, आप अगर अपने ऊपर इतने सारे काम कर रहे हो, then you deserve to make money. An entrepreneurship should make money, no matter it's a social entrepreneurship, कहाँ पे भी कैसे भी हो। So money making is an art, and you must master this art. बहुत of many of us कभी कभार हिंदी और इंग्लिश में बैलेंस करते करते लैंग्वेज बदल जाता है। और मैं एक बंगाली हूँ, तो मेरे लिए हिंदी लैंग्वेज एंड इंग्लिश लैंग्वेज में भी कभी कभार थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। सो in case I'm not able to make you communicate to you properly, let me know, huh? So I'll change my mode of communication. So uh, uh, many of us, बहुत सारे मेल्स यहाँ पे मैं उनको देख रहा हूँ। Many of us wants to have six packs. हम लोग को अच्छा लगता है कि हम लोग के you know we have those six packs. I think all of us dreamt it once, at least once in our life, कि हमारे 6 पैक्स बने। जब हम कभी भी थोड़ा भी एक्सरसाइज करते हैं, हमें लगता है कि कल के कल ही 6 पैक्स बने। 6 पैक्स बनाने के लिए हमने कितना मेहनत की। बहुत कम लोगों ने वो 6 पैक्स अचीव करने के लिए एंड तक। अगर आप 6 पैक्स के लिए मेहनत करोगे, 6 पैक्स बनेंगे। आज नहीं तो कल बनेंगे, कल नहीं तो 1 साल बाद बनेंगे, बट वो बनेंगे। आपको मेहनत करते रहना। तो मैंने कहीं पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, और मैं चाहता हूँ कि वो पॉइंट्स आप लोगों के पास, सभी के पास पेन पेंसिल है, पेपर है। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग वो कुछ शब्द लिखो अपने अपने पास। सो आप जस्ट अनम्यूट करके मुझे बोल दो आप लोगों के पास पेन पेंसिल और पेपर आपके पास रेडी है, देन आई विल स्टार्ट अगेन। आप लोग अनम्यूट करके मुझे बोल सकते हो कि यू आर देयर। I don't know. Yes, I think every student have pen and pencil with him. Okay, Yes, okay, so, okay, okay, keep going. okay, sir. ठीक है। So, okay, so मैं अगर कोई किसी कारण से यहाँ पे नहीं है, तो मैं उनको चंद और सेकंड्स का टाइम देता हूँ, ताकि वो अपना पेन पेंसिल लेके आ जाए। और मैं इस बीच और एक पॉइंट भी कहना चाहता हूँ। आई लाइक ओलिवर नेपोलियन हिल। वो 1900 में उन्होंने जन्म लिया। 1900 में he was one of the scholars who has been looked upon by many of the inventors, और उन्होंने बहुत सारे रिसर्च किए। तो उन्होंने 1937 में एक बुक लिखा, जिस बुक का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। उसमें उन्होंने कहा है कि
हर एक ह्यूमन, हर एक लिविंग सेल, उनके उसके कैरेक्टर में ये होता है कि वो हमेशा ग्रो करे और अपने आप को वो लाइफ में जो अपने लाइफ में वो एक्सेल कर रहा है उसको वो एक्सप्रेस कर सके। आप फॉर एग्जाम्पल एक पेड़ ले लो, वो पेड़ जब बड़ा होता है, वो बड़े होते 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 वो बीच में रुक नहीं जाता है ये सोच के कि भाई बहुत बड़े हो गए, अभी आई आई कैन आई कैन रेस्ट नाउ, अभी मेरे पास वो चॉइस है कि मैं अपने कुछ समय के लिए मैं ठहर जाऊं। पता नहीं हम इंसानों ने, जो नेचर ने, या जो ऑलमाइटी ने, जो खुदा ने, परवरदिगार ने हमें जो ये एक राइट दिया है, राइट ऑफ चॉइसेस, क्या हम वो राइट ऑफ चॉइसेस को ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं? क्या हम, आपके पास चॉइस है कि आप जहां पे हो वहीं पे आप सिक्योर्ड रहो, या आप अपने आप को आप अपने आप को बहुत आगे ले जाओ। सो क्या हम अपने लाइफ में जो हमें चॉइसेस मिला है कि हम ग्रोथ करते करते रुक जाते हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं, एक कुछ और डायरेक्शन में चले जाते हैं, जो जो नेचर ने हमें चॉइस, राइट ऑफ चॉइसेस दिए हैं, क्या हम उस राइट ऑफ चॉइसेस का सही इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? ये क्वेश्चन सभी को अपने आप से जरूर पूछना चाहिए। आज आपके पास चॉइस है कि आप इस 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 डिस्कशन में आप अपने आप को म्यूट करके एक ऑनलाइन गेम खेल लो, या आपके पास चॉइस है आप इसको ऑन करके सारे वीडियो ऑडियो म्यूट करके आप घूम फिर के जब भी मन चाहे आप आ जाओ। बट ये चॉइस है आपकी जिंदगी में, ये चॉइस क्या आपकी जिंदगी में सही है? ये जो कुछ आप कर रहे हो वो सही है? मैं आज जो डिस्कशन कर रहा हूँ आपसे, ये मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहा हूँ ताकि जो भी मैं एक एक शब्द जो कह रहा हूँ वो आपके लिए सही हो। वो मैं अपने लिए ये सारा डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। मुझे अगर डिस्कस करना होगा तो मैं कुछ और डिस्कस करना चाहूंगा अपने साथ। ये चीज डिस्कस कर रहे हैं ये आपके लिए सही है। Similarly, an entrepreneur should always think about what is possibly good for, or what is possibly a great value for his or her customers. आपको अपने कस्टमर्स के बारे में सोचना है, आपको अपने कस्टमर्स के प्रॉब्लम के बारे में सोचना है। So we'll get into that B2B customer profile and B2C customer profile in short duration, in a small, just in few seconds more. But ये जो choices है आपको अपनी जिंदगी में, ये आपको बहुत बहुत सोच समझ के लेना है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर ऐसे नहीं बनता। एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये डिसीजन, ये चॉइसेस आपको हमेशा सही लेना है। सॉफ्ट स्किल्स, वो उतने ही सॉफ्ट स्किल्स चाहिए जितने आपको कोई भी नौकरी के लिए चाहिए होगा। अंग्रेजी बोलना, या आप आप एक बहुत अच्छे एलिवेटर पिच देना, वो आप उससे चंद चंद सेंटीमीटर्स या चंद मीटर्स आप लोग आगे जा सकते हो। इससे ज्यादा सॉफ्ट स्किल्स का फंक्शन नहीं रहता है। सारे सॉफ्ट स्किल्स यहाँ पे हैं फॉर एन एंटरप्रेन्योर। अगर आप अपने दिमाग से स्ट्रांग हो, अगर आप वो सारी चीजें जो आपको चाहिए एंटरप्रेन्योर्स के लिए, उसमें स्ट्रांग हो, देन नोबडी कैन स्टॉप। सो मैंने जब टॉपिक एक सक्सेसफुल रोल ऑफ सॉफ्ट स्किल एंड कम्युनिकेशन के बारे में सोचा फॉर ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप, तो मुझे मेरे लिए कुछ एट्रीब्यूट सामने आए rather than soft skills. So there are 15 of them.
मैं वो 15 ऑफ देम को ये जो 15 सॉफ्ट एट्रीब्यूट्स हैं, इसको मैं कोई भी सीक्वेंस, कोई भी लॉजिकल सीक्वेंस में नहीं रखा हूं। मैं आपको ये ये मैं पढ़ रहा हूँ, ये मैं आपको बोल रहा हूँ। आई रिक्वेस्ट कि आप इनको लिखो, एंड क्यों लिखो मैं उनको अभी आपको बता दूंगा। पहले ही बताता हूँ, फिर मैं बोलता हूँ इन सबको। ये 15 में से कोई भी 3 अगर आप अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट किए, आई एम श्योर यू वुड बी ए सक्सेसफुल पर्सन इन योर लाइफ प्रोफेशनली। सो वो चीज, आपका प्रोफेशन, आपका एंटरप्रेन्योरशिप होगा, या आप कोई जॉब में जाओगे, क्या करोगे। आप अपनी स्टूडेंट हो तो आपका स्टूडेंट प्रोफेशन में आप सक्सेसफुल हो। सो 15 है, कोशिश करो 3 से ज्यादा चीज अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करने के लिए। दोस्त, आप लोग कहां से कहां चले जाओगे आप लोगों को खुद याद नहीं रहेगा। सो हियर वी स्टार्ट। एक एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, सो व्हाट डज इट टेक टू बी एन एंटरप्रेन्योरशिप, to be an entrepreneur? First thing that comes to my mind without looking at the sequence is resilience. आपको resilience शब्द का अर्थ मालूम है? अगर नहीं मालूम है तो अनम्यूट करके बोलिए, मैं बता दूंगा। Resilience is the first and more is the first thing without being in sequence. Courageous, brave, courageous is the second thing. Third is being calculative. Calculative for risk, for everything in your life. You have to, आपने जो एफर्ट पुट किया, उस एफर्ट पुट करने पे आपको क्या रिजल्ट आएगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट? सो आप सारा दिन एग्जाम के पहले 1 हफ्ते तक आपने पढ़ाई किया है। सो 1 हफ्ते पढ़ाई करने के बाद आपको ये कैलकुलेट करना है कि आपको आपको इससे कितने मार्क्स आएंगे। दिस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ बीइंग कैलकुलेटेड। ओके, यू नीड टू हैव पैशन। द फोर्थ थिंग इज यू नीड टू हैव पैशन। मतलब अगर आपने एंटरप्रेन्योरशिप में अगर आप जाना चाहते हो, तो जिस चीज को लेके आप जाना चाहते हो, जिस चीज में आप घुसना चाहते हो, उसमें आपको यू हैव टू हैव द पैशन इन यू। तो आपको वो चीज दिन रात आपकी आंखों के सामने दिखना चाहिए। यू नीड टू हैव विजन। फिफ्थ थिंग इज विजन। आपको आपको आपके लॉन्ग टर्म गोल्स साफ दिखने चाहिए कि दिस इज व्हाट इट नीड टू बी। मैं ये करना चाहता हूँ। पैसे कमाना इज अ शॉर्ट टर्म गोल। Being an entrepreneur is also a short term goal. What is beyond this? What is beyond this? Why you want to be an entrepreneur? Why you want to earn money? Why? You know, हम लोग ऑपरेशन मैनेजमेंट में एक फाइंड वाई का एक थ्योरी है। मैं उसके डीप डाइव में नहीं जा रहा हूं। आप कोई भी चीज को 5 बार पूछिए वाई, क्यों ये करना चाह रहे हैं, क्या है, क्या है, क्या है। सो अगर वाई चीज, कोई भी पॉइंट पे आप 5 बार घुस जाए, तो आपको उस चीज का सोल्यूशन मिल सकता है। यू कैन गेट द रियल रीजन व्हाई इट हैपेंड और कहां तक वो जा रहा है। सो मुझे विजन जो मेरे लिस्ट में 5th पॉइंट है, इसलिए विजन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कम्स इज परसीवरेंस। छोड़ना नहीं है दोस्त, लगे रहना है। मैं यही चीज को अलग अलग तरीके से बोलूंगा। ये परसिवरेंस वैसा ही दवाई है जो ब्लड प्रेशर का दवाई, उसके साथ मल्टीपल चीजें
इंडिया में हर किसी को ब्लड प्रेशर है, बहुत लोगों को ब्लड प्रेशर है, हर किसी को तो नहीं, बहुत लोगों को ब्लड प्रेशर है। लेकिन कौन सी दवाई, कौन सी ब्लड प्रेशर की, क्या केमिकल किसके लिए कितना डोज में जाना है, वो डिपेंड करता है उस इंडिविजुअल के तरफ। ये परसीवरेंस भी वही ब्लड प्रेशर की दवाई है। इसको ऑलमोस्ट हर चीज, इसको ना तरह तरीके से मैं इन 15 चीजों में मैं बताऊंगा। सो परसीवरेंस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये चीज समझ में ना आए कोई भी चीज, प्लीज अनम्यूट एंड टेल मी। द सेवेंथ थिंग इज कंसिस्टेंसी। आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। विराट कोहली इसलिए आजकल लोगों की गालियां सुन रहा है क्योंकि ही इज नॉट कंसिस्टेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आप जितने भी टैलेंटेड हो ना क्यों, पास्ट आपका कितना भी इलास्ट्रेटेड क्यों ना हो, लेकिन प्रेजेंट में अगर आप कंसिस्टेंट ना हो, लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सो कंसिस्टेंसी इज माय सेवेंथ पॉइंट। एट्थ पॉइंट इज ऑप्टिमिज्म। आप एडवर्स सिचुएशन में भी ऑप्टिमिस्ट रहोगे। आपको एडवर्स सिचुएशन देखने के बाद भी आपको ये लगेगा कि भाई इससे बाहर निकलने के बाद चीजें अच्छी होने वाली है, और चीजें अच्छी होने वाली है। सो ऑप्टिमिज्म इज माय एट्थ पॉइंट। नाइन्थ पॉइंट, I don't know how many of you agree with me, but my ninth point is loyalty. Sorry. Loyalty, you need to be loyal to yourself. आप अपनी जिंदगी में अपने साथ झूठ नहीं बोल सकते, अपने गलतियों को जस्टिफाई नहीं कर सकते, अपनी नाकामियों को जस्टिफाई नहीं कर सकते, अपने अपने साथ आप गद्दारी नहीं कर सकते। और ये जवाब ना आप इस दुनिया में आपको किसी को नहीं देना है, आपको अपने आप को देना है। सो बी लॉयल टू योरसेल्फ। एंड इसके बाद अगर आप अपने आप से लॉयल रहोगे ना, देन जो दूसरों के साथ, कस्टमर्स के साथ लॉयल रहना है तो कस्टमर उल्टा लॉयल आपके साथ रहेगा। ये कंसेप्ट है, दैट विल फॉलो लेटर। ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, जाके लोग इस पे पेपर छाप रहे हैं, बुक छाप रहे हैं। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में सीरीज निकल गया कि हाउ यू शुड बी लॉयल टू द कस्टमर सो दैट कस्टमर लॉयल्टी कम्स बैक, बाउंस बैक टू यू। ये सारी चीजें बाद में आती है। मुझे ऐसा लगता है लॉयल्टी इज फर्स्ट, should be cultivated, should be practiced at home. आप अपने साथ लॉयल रहो। So that's my ninth point. 10th point is creativity. Creativity doesn't mean कि आप आर्टिस्टिक माइंड में हो और आप सब चीज को, क्रिएटिविटी आप में है, आप कोई भी चीज, कोई कबाड़ा दो, आप उससे कुछ अच्छा कुछ बना दो। जरूरत नहीं है आपको हर चीज बनानी। कबाड़े को एक अच्छा चीज बनाने का टैलेंट आप में होने की जरूरत नहीं, लेकिन वो सोच जरूरी है कि कुछ भी देखे उसका उसका एक क्रिएटिव सोल्यूशन कैसे निकाल सके। दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। दैट्स माय पॉइंट नंबर 10 बाय द वे। पॉइंट नंबर 11 बहुत सुंदर वर्ड है, which is called grit. ग्रिट का मतलब है कि परसीवरेंस विद पैशन। आपके पास परसीवरेंस है विद पैशन टू अचीव योर लॉन्ग टर्म गोल। आप अपनी जिंदगी में जो चीज अचीव करना चाहते हो, उसके लिए आपका ग्रिट क्या है। आई मीन इंटरनेट पे सर्च कीजिएगा, बहुत सारे ग्रिट के ऊपर अच्छे अच्छे वीडियोस हैं, और कैसे आप उसको कल्टीवेट कर सकते हो अपने साथ, ये आप देखो। My 12th point is time management. Time is money. अपना टाइम का वैल्यू नहीं दिया, आपको इस दुनिया, आपके टाइम का वैल्यू और कोई नहीं देगा। मुझे
अगर 1 घंटा पढ़ाना है और मैंने टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से इफ आई फेल, आई एम श्योर जो स्टूडेंट एक एक करके कम हो रहे हैं, इट्स जस्ट बिकॉज प्रोबेबली आई एम मिसिंग माय टाइम मैनेजमेंट पार्ट. सो टाइम मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट फॉर एन एंटरप्रेन्योर. सॉरी, फैकल्टी को ऐसा हो ही जाता है, उनको बात करने में मजा आता है और वो एक ही चीज रिपीटेडली बोलना पसंद करते हैं. बट ऑल दिस पॉइंट्स, ट्रस्ट मी, आर वेरी वेरी क्रिटिकल for for an individual uh, to become an entrepreneur. Uh, 13th point is taking responsibility. हम इसके बारे में बात कर चुके हैं, so I won't explain. 14th point is being observant. आपको हर चीज में observant होना है, आपको देखना है हर चीज में. You have to see through a particular thing. And my 15th point is master the art of listening. आप सुनने और जो चीज बोली जा रही है, आपका कस्टमर क्या आपको बोल रहा है, आपका सोसाइटी आपको क्या बोल रहा है, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है, वो चीज आप, this is an art which you have to inculcate. So these are the 15 points, and I often say in many of my session कि out of this 15 points, अगर आप इनमें से कोई 3 भी अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट कर सकें रिलीजियसली, आप अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल होगे. एंड इन दिस कंटेक्स्ट यू विल बी अ वेरी वेरी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर. मेरे पास बहुत सारे दूसरे पॉइंट्स हैं. आई डोंट नो मेरे पास कितने टाइम होगा ये सारी चीजें एक्सप्लेन करने में. मेरे पास एक प्रेजेंटेशन भी है. तो अमन सर, मैं आपसे एक बार पूछना चाहता हूँ कि हम कितने समय और कंटिन्यू कर सकते हैं, और क्या स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं इस बारे में, ये डिस्कशन को आगे ले जाने में, या I think half an hour we can. ठीक है सर, ठीक है. अगर हाफ एन आवर है तो आई वोंट डीप डाइव इनटू माय प्रेजेंटेशन. मैं प्रेजेंटेशन के लिए आई थॉट दिस इज मोर इम्पोर्टेंट. कुछ चीजें ये टू कम टू ए प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप समझो एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है और उसके लिए क्या चाहिए. So entrepreneurs also have a great capacity to handle uncertainty. Uncertainty will always come. आप कोई भी चीज शुरू करो तो उसमें uncertainty जरूर आएगी. Business is full of uncertainty. आप कभी नहीं कह सकते कि कल क्या होने वाला है. They have a great appetite to handle those uncertainty. But honestly, I don't think we need entrepreneurs, lot many entrepreneurs at this point of time. जो हमारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, वो एक चीज आप लोग जरूर जानो ये इस पे, we need disruptive entrepreneurs. So ये एक एंटरप्रेन्योर का नेक्स्ट लेवल है. अभी तक जो हमने बात की, प्रीटी बेसिक बात की कि एंटरप्रेन्योरशिप्स के लिए क्या चाहिए. बट कौन से एंटरप्रेन्योर का सक्सेस रेट ज्यादा है? इन आवर रिसेंट सर्वे और जो चीज पब्लिश हुआ है, all the disruptive entrepreneurs have been extraordinarily been successful. So हमें disruptive entrepreneurs चाहिए. आपको disruptive entrepreneur के बारे में भी मैं थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ. Basically, a disruptive entrepreneur is someone who challenges the status quo. Status quo वो होता है कि जो चीज जैसा है वो वैसा है. तो somebody who have enormous unlimited money and power, they don't want to change the status quo. So इसलिए बहुत समय बड़े-बड़े ऑर्गेनाइजेशन जब
उनके पास एनॉर्मस पावर होता जाता है, एनॉर्मस मार्केट बुल मार्केट मार्केट साइज वो कैप्चर कर लेते हैं, तो वो थोड़ा सा कंप्लीसेंट हो जाते हैं। आपको अ, आपको आपके मार्केट शेयर के लिए हमेशा हंग्री रहना है, यू हैव टू फाइट फॉर इट। सो disruptive entrepreneurs always challenge the status quo, और तभी जाके वो नई चीज लेके आते हैं मार्केट में। So we need more of disruptors in the present situation. So this is one more thing that you can note down and always think. Write down in your soft board, आप आपके स्टडी टेबल के ऊपर एक सॉफ्ट बोर्ड रखो, या सॉफ्ट बोर्ड नहीं है तो ऐसे ही वॉल पे लिख दो, आई वांट टू बी ए डिसरप्टिव एंटरप्रेन्योर। आई एम श्योर आपके दिमाग में वो चीज, जब आप सोओगे ना, फिर भी आपके दिमाग में वो चीज आती रहेगी कि यू वांट टू बी ए डिसरप्टिव एंटरप्रेन्योर, आप अपनी जिंदगी में ये करना चाहते हो, ये करना चाहते हो। सो डिसरप्शन इज इम्पोर्टेंट। जो चीज जैसा है वो वैसा जिंदगी में आगे नहीं जाएगी। मुझे और एक चीज भी बहुत अच्छा लगता है, मैंने हमारे यहाँ पे एक बाहर से एक फैकल्टी आए थे, उनसे उन्होंने मुझे उन्होंने एक टर्म यूज किया था कि एक डिसरप्टिव एंटरप्रेन्योर हैव, और एक एंटरप्रेन्योर, दे आर समथिंग लाइक ड्रग ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। उनको ना सेल्फ डिसिप्लिन का ड्रग लग जाता है। सो ड्रग एक ऐसा शब्द है जो हमारे यहाँ पे गलत तरीके से उसको इंटरप्रेट किया जाता है। यूएस में वही ड्रग को मेडिसिन भी बोला जाता है, लेकिन उनके हिसाब से सेल्फ डिसिप्लिन का अगर आपका ड्रग आपके अंदर लग गया, आपको उसकी आपको उसकी आदत लग गई, तो आप ऑब्वियसली एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बनो। ऑल all good entrepreneurs are very well disciplined, self discipline भी एक बहुत important aspect है। और वो क्या क्या चीज से एडिक्टेड है? दे आर एडिक्टेड टू सक्सेस। उनको सक्सेस चाहिए हर एक एंटरप्रेन्योर। दे आर एडिक्टेड टू परफॉर्मेंस इन प्रेशर, they are addicted to result, they are addicted to practice, they are addicted to achievements, they are addicted to anything which is their business, they are addicted to their business focus, they are addicted to their vision. So addiction and drug ये कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन इन सब का हमें एडिक्शन होना चाहिए। addiction to the success, addiction to practice certain thing। एंटरप्रेन्योरशिप तब आई, कोई जो 6 महीने में क्विट कर जाए ना, वो कभी एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता। यू हैव टू लूज बिग एंड बिग टू विन इवन बिगर। आपको आपको अपना पैसा, अपना शोहरत, योर नेम, योर फेम, योर मनी, you ready to lose everything so that you can win even big। so ये चीज एक एंटरप्रेन्योर में होना चाहिए। अगर आप डर डर के चलो तो मुश्किल है। आज अगर मैं घूम के देखूं तो इंटरनेट और बाकी सारे टेक्नोलॉजीज जो हैं, IoT बोलो, वर्चुअल रियलिटी बोलो, ऑगमेंटेड रियलिटी बोलो, जो भी टेक्नोलॉजीज हैं हमारे पास, वो सारी टेक्नोलॉजीज हैव रीच्ड टू अ स्केल जो वो टेक्नोलॉजी अभी डेमोक्रेटाइज्ड हो चुके हैं, सबके पास आ चुका है। सो और वो अफोर्डेबल भी है। सो ये बहुत अच्छा टाइम है टू बी एन एंटरप्रेन्योर। सो मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग डिजिटल, बीइंग मैकेनिकल, ये आपके बिजनेस के ब्लड में होना चाहिए, क्योंकि इसी से ही आप पैसे बना सकते हो।
So learn more digital things, learn things how जो चीज हम मैन्युअली कर रहे हैं उसको हम मैकेनिकली चीजों को करें, एफिशिएंटली करें। आज एंटरप्रेन्योरशिप और भी रिलेवेंट है बिकॉज ऑफ दिस डिजिटलाइजेशन एंड मैकेनाइजेशन ऑफ एंटायर थिंग। आप कोई भी आप बोल सकते हो इंडिया का सबसे बड़ा कौन सा डिपार्टमेंट इंडिया में सबसे ज्यादा नौकरी देता था टिल लास्ट डिकेड तक, कौन सा डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा नौकरी मिलता था गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, बताइए एनीबॉडी? Railways? Yes, sir, railways. Okay, railways is the right answer. Railways and Indian Army were always been the largest आज भी government departments में, among all the government departments में railways and Indian Army or the defense, military, paramilitary वो सबसे बड़े गवर्नमेंट में जॉब्स देते हैं। आज डिफेंस में हम लोग कोई भी गवर्नमेंट हो, सिंस इंडस्ट्रियलाइजेशन, सिंस ये आईटी के जो आईटी आके जो डिस्ट्रप्शन किया है, तब से हम कोई भी गवर्नमेंट हो हम उसको ये बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट नौकरी नहीं दे पा रहा है। ये इंडिया में प्रॉब्लम नहीं है, ये अक्रॉस द ग्लोब है। क्या हो रहा है आज हमारा रेलवेज मैकेनाइज्ड हो रहा है, जहां पे जिस स्टेशन में 10 लोग चाहिए थे आज 3 लोगों से काम हो रहा है। आर्मी में जहां पे पहले पूरा बटालियन चाहिए था आज एक रफाल उसको कर दे रहा है, या I don't want to use that term, but आज वो एक मल्टी बैरल गन एक पूरा ब्रिगेड का काम कर दे रहा है। So our forces are getting mechanized, our largest, so हमें एंटरप्रेन्योरशिप के अलावा इतने बड़े स्टूडेंट फोर्स को एम्प्लॉय करने का कोई चारा नहीं, गवर्नमेंट जॉब्स नहीं मिलने वाला है ही नहीं भाई, क्योंकि कंप्यूटर ने और मैकेनाइज सिस्टम ने हमें हमारा वो सारा जॉब एब्जॉर्ब कर चुके हैं। हम शायद से प्री 91 एरा में जाएंगे, तब जाके शायद से कुछ जॉब्स आएगा, लेकिन वो चीज पॉसिबल नहीं है। हमारा जॉब्स ऑलरेडी कंप्यूटर ने खा लिया है। सो अभी वो कंप्यूटर्स जो हमारा जॉब्स खा चुका है, उसी कंप्यूटर को ही हमें अपना बेस बनाना चाहिए टू गेट इनटू द एंटरप्रेन्योरशिप। दैट्स व्हाट आई ट्राई टू मीन। मैं इस चीज पे नहीं जाना चाहता था, बट आई एम सेइंग कि ये एक चैलेंज है कि कंप्यूटर्स ने हमारा जो रेगुलर जॉब था इन आर्मी, इन मिलिट्री, इन डिफेंस, इन रेलवेज, वो जब कंप्यूटर ने उसको कम कर रहा है, उसी कंप्यूटर के बेसिस में हमें अपना बिजनेस शुरू करना चाहिए। एक चैलेंज है, उसी चैलेंज को हमें अपॉर्चुनिटी बना के अपना बिजनेस शुरू करना चाहिए। दैट्स व्हाट आई वांट टू मीन। लास्टली मैं ये कहना चाहूंगा कि आज जो कंटेंट आप क्रिएट कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या कंटेंट क्रिएट करना चाह रहे हो? आप अपने सोशल प्लेटफॉर्म में क्या कंटेंट क्रिएट कर रहे हो? आप क्या चीज सर्च कर रहे हो? आप क्या चीज में पढ़ाई के अलावा अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो? आपको इस दुनिया में किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं, किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं, आप अपने को जवाब दो। क्या ये टाइम जो आप स्पेंड कर रहे हो, ये टाइम आपको जिंदगी में कोई किसी दूसरे का प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करेगा? अगर नहीं करेगा तो आप अपना टाइम उसमें लगाओ जहां पे किसी और का प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सको। देन यू कैन बी एन एंटरप्रेन्योर। थिंक अबाउट इट। आप किस चीज, कौन सा प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर पा रहे हो, उस चीज के बारे में आप ध्यान दो। अगर आप ये 4-5 साल आप ये सोच के आप अपने माइंड को ट्रेन करोगे ना, तो मैं
मुझे विश्वास है आपको इस तरीके की बोरिंग लेक्चर्स आपको सुनने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना अपने दिमाग में डालने की जरूरत है कि क्या करना है अपनी जिंदगी। आप कौन से इशू को सॉल्व करना चाहते हो, एक इशू पकड़। चाहे आप अपने माँ को, अपने घर पे अपने फादर को, अपने मदर को साइलेंटली कुछ घंटे देखो, उनको क्या परेशानी है, ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। जो आपके पेरेंट्स को परेशानी है, कोई भी छोटी सी भी प्रॉब्लम, सोचो वो उनके मोबाइल की कोई परेशानी, कोई भी परेशानी है, आई डोंट नो, कोई भी परेशानी है, वो सिर्फ इकलौते आपके पेरेंट्स की परेशानी नहीं है, वो आपके पेरेंट की तरह बहुत सारे दूसरे पेरेंट्स को भी परेशानी है। अगर आप वो प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो दिस कुड बी ए $1 million बिजनेस फॉर यू। आप अपने भाई बहन का प्रॉब्लम देखो, आप अपने यूनिवर्सिटी का प्रॉब्लम देखो, कोई एक प्रॉब्लम आप यूनिवर्सिटी का प्रॉब्लम सॉल्व करो किसी भी तरीके से, आप उससे लाखों करोड़ों कमा सकते हो। मुझे हमेशा लगता है कि यू नो और किसी चीज पे जल्दी नहीं है। कल आपको एंटरप्रेन्योर नहीं बनना है, आपको एंटरप्रेन्योर, आपके पास बहुत टाइम है। मैं 40-45 एज में भी मैं एंटरप्रेन्योर नहीं बना, मुझे क्या मालूम, मैं शायद से एट द एज ऑफ 60 मैं एंटरप्रेन्योर बनूं, मैं बन सकता हूँ। सो ये माइंडसेट है। मैं हमेशा सोचता हूँ कि मैं ये करूँ, ये करूँ, ये करूँ, नहीं कर रहा, लेकिन सोच तो है, कभी ना कभी मैं जरूर करूंगा। मैं अपनी जिंदगी में अपने साथ मैंने ये अपने आप से मैंने कम्युनिकेट किया, कभी ना कभी मैं तो एंटरप्रेन्योर जरूर बनूंगा। कब बनूंगा, कैसे बनूंगा, क्या करूंगा, नहीं जानूंगा, बट मैं बनूंगा जरूर। सो सोच चाहिए, सोच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक चीज जो मुझे बहुत लोगों से बात करके जो समझ आया, जो मुझे प्रॉब्लम दिखा, वो ये है कि लोग बोलते हैं कि वी वर नॉट लकी, हमने एंटरप्रेन्योरशिप में अपने हाथ 4-5 बार जला दिए, वी हैव बर्न आवर फिंगर्स एंड हमने मल्टीपल बार एफर्ट किया, नहीं किया, बट हम सक्सेसफुल नहीं हुए। आप जानते हो, आपने जब जन्म लिया, कोई भी, मैंने भी जब जन्म लिया, मैं किसी और के बारे में नहीं, आई एम बॉर्न लकी बिकॉज प्रोबेबली देयर वाज 400 ट्रिलियन पॉसिबिलिटीज। अगर आप लोग सभी इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी थ्योरी पढ़ा है, सो देयर आर 400 ट्रिलियन पॉसिबिलिटीज कि मैं जन्म ना लूं, लेकिन देयर वाज 1 out of 400 ट्रिलियन पॉसिबिलिटी कि मेरा जन्म हो। सो बाय दैट सेम लॉजिक, आज मैं आज मैं जो जिंदा हूं, या आज जो मैंने जो 43 इयर्स पहले जन्म लिया है, सो वो वो जो वो अ, वो इंसिडेंट है, इट हैपेंड, उसका प्रोबेबिलिटी थ्योरी देखोगे तो इस 400 ट्रिलियन पॉसिबिलिटी में सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी था कि ये इंसान ऐसा बनेगा, मैं ऐसा बना। सो विद दैट लॉजिक आई एम सो लकी। विद द सेम लॉजिक, अगर मैं जिंदगी में सिर्फ लॉटरी टिकट्स ही खरीदूं, विद द सेम प्रोबेबिलिटी थ्योरी, ऐसा कहते हैं लोग कि इन द सेम प्रोबेबिलिटी थ्योरी आप 67,500, सॉरी गलत बोला, 6,750 करोड़ इंडियन रुपीस इन करेंसी मैं अर्न करूंगा अगर मैं इस जिंदगी में सिर्फ लॉटरी खरीदा, with the same probability,
6,750 करोड़, अगर 18% आपने जीएसटी भी दे दिया उसमें, फिर भी 5,535 करोड़ आप अर्न करोगे लॉटरी में ही, विद द सेम प्रोबेबिलिटी. सो ऑल ऑफ अस, हम लोग जो इस डिस्कशन में 35 लोग हैं, ऑल ऑफ अस आर बॉर्न लकी. सो लक फैक्टर एग्जिस्ट करता नहीं है, करता होगा, लेकिन दैट कैन नॉट बी एन डैमिंग फैक्टर टू बी एन एंटरप्रेन्योर. आपको आपको अपने आप, आपको अंग्रेजी नहीं आती, आप एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते. आपको एक्सप्रेस करना नहीं आता, आपको बोलना नहीं आता, इसलिए आप एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते. आप कोई सवाल पूछ नहीं सकते, इसलिए आप एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते. दिस ऑल आर बुलशिट. सॉरी टू यूज एन अनपार्लियामेंट्री वर्ड, बट मुझे लगता है कि हम लोग हर कोई, वी आर बॉर्न लकी एंड लकी enough to be a successful disruptive entrepreneur. मैं सोचा था कि आपको 15 मिनट पे थोड़ा सा आपको बता के मैं एक प्रेजेंटेशन रन करना चाहता था, बट सॉरी, मैंने ये डिस्कशन अननेसेसरीली बहुत लंबा खींच लिया है. आई डोंट नो कि आपको इस डिस्कशन में कुछ कुछ समझ में आया कि नहीं. मैं सर को रिक्वेस्ट करूंगा, अमन सर को, कि कभी एक मौका हमें और दे जहां पे मैं कुछ एंटरप्रेन्योरशिप के टेक्निकलिटीज के बारे में और उस टेक्निकलिटी को अचीव करने के लिए क्या क्या आपको स्किल्स चाहिए, मे बी एलिवेटर स्विच कैसे हो, आप एक्सेल शीट्स कैसे, आप उस एक्सेल शीट में क्या बनाए, आप किस तरीके से अपना बिजनेस प्रपोजल बनाए इन एक्सेल फॉर्मेट. बहुत सारी चीजें हैं हम डिस्कस कर सकते हैं, मे बी डिपेंडिंग ऑन योर इंटरेस्ट. बिफोर वी गिव इट ए क्लोज, हमारे पास कुछ मिनट्स हैं. मैं चाहूंगा कि आप लोगों में से किसी के पास कोई भी सवाल हो इस डिस्कशन के ऊपर, आई लाइक टू आंसर यू ऑल. Yes, sir. जी बताइए. नमस्ते. Sir, at the stage of entrepreneurship, how we can reduce the stress level or the anxiety by the help of subconscious mind for the constructive work? कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर ये एक डिफरेंट गैमेट में चला आता है. एंजाइटी आपका वही फैक्टर है जो मैं आपको पहले बोला था. एंजाइटी इज अनदर फॉर्मेशन ऑफ फियर इन आवर माइंड. हमें किस चीज का एंजाइटी रहता है कि पास्ट में जो फ्यूचर में जो होने वाला है, फ्यूचर में जो अनसर्टेनिटी का है, उस चीज को हमें ओवरकम करना है. कैसे हम ओवरकम करेंगे? अगर आपको याद हो, सो देयर आर लाइक 15 पॉइंट्स दैट आई हैव मेंशन्ड. उस 15 पॉइंट्स में आप कोई भी 3 पॉइंट अगर आपने लिखा है, नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं, मैं चंद सेकंड्स में आपको दोबारा ये बोल दूंगा. Yes, sir. Right. I right, sir. हाँ, सो उसमें आपको, आप कोई भी, अगर आप से फॉर एग्जांपल यू आर पैशनेट अबाउट एनीथिंग, आपका पैशन आपका एंजाइटी ओवरकम करेगा और पैशन ही एंजाइटी लेके आता है. सो इट्स अ माइंड गेम. आपको एंजाइटी के लिए बहुत पॉपुलर वे में लोग बोलते हैं कि आप फिजिकली अपने आप को ज्यादा इन्वॉल्व करो, मेडिटेट करो, फिजिकल एक्टिविटी करो, उससे आपका एंजाइटी कम होता है मेडिकल टर्म्स. बट मुझे ऐसा लगता है कि एंजाइटी, आप जब डिसिप्लिन नहीं होते हो, कोई भी चीज, कोई भी काम करने जा रहे हो, उसमें अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो, आप एंजाइटी रिड्यूस कर सकते हो बाय पुटिंग एवरीथिंग इन अ पीस ऑफ पेपर. मेरे पास एंजाइटी था कि यार मैं जो आप लोगों को आज कम्युनिकेट करने जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास जो
मटेरियल है वो एक डिफरेंट लेवल में है। हम लोग किस तरीके से हम लोग जब इन्वेस्टर्स को इनवाइट करते हैं, हम जब कोलैबोरेट करते हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट के साथ, गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ, मेरे पास वो सारे डेटाज हैं, मैं वो डेटा आप लोगों को कैसे दूं? तो मैंने उसी डेटा से कुछ एक्सट्रैक्ट लिखा और मेरे पास ये 6-7 पेजेस हैं, ऐसे ही पड़े हुए थे इधर उधर। मैं इसी में रफ पेजेस में मैंने कुछ लिखा एंड मेरा एंजाइटी कम हो गया। मुझे लगा कि दिस आर समथिंग व्हिच इज मोर रिलेवेंट टू यू। तो मुझे ऐसा लगता है एंजाइटी कम करने के लिए यू हैव टू जॉट डाउन योर सेट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड राइट डाउन पॉसिबल सॉल्यूशंस। एग्जाम के एंजाइटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है जो भी आपको समझ आ रहा है बिफोर एग्जाम आप उसको लिखो, बुक बंद करके लिखो, ऐसे ही लिखो, कुछ भी समझ आए। आप जो लिख रहे हो एग्जाम के पहले, एग्जाम में उससे कई गुना अच्छा लिखोगे। लेकिन अगर एग्जाम के टाइम आपने लिखने की कोशिश की तो क्या होगा, आप जो कुछ लिखने वाले थे ना उससे कुछ कम ही लिखोगे। सिमिलरली एंटरप्रेन्योरशिप के समय भी आपको जो चीज आप बनाना चाहते हो, जो चीज आप करना चाहते हो, जो सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हो, उसका एक वर्चुअली आप उसका एक स्ट्रक्चर क्रिएट करो एंड डू इट इन ए फेज मैनर। उसका बैकअप प्लान क्रिएट करना चाहिए। सो वो एक टेक्निकल चीजें हैं किस तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप को एंटरप्रेन्योर्स को गाइड किया जाता है। बहुत सारे लाइफ कोचेस होते हैं, बिजनेस लाइफ कोचेस होते हैं जिनका वीडियोस आप YouTube में देख सकते हो। मैं आपको मेरे कोऑर्डिनेट्स दे दूंगा। आप लोग मेरे से अगर वन ऑन वन कभी भी कोई भी इशू पे इंटरेक्ट करोगे तो मैं आपको बता भी सकता हूँ, कुछ वीडियोस आपको शेयर कर सकता हूँ। बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। हम इंटरनेट पे सोशल मीडिया से हटके अगर YouTube में या कहीं कहीं पे जहाँ पे लोगों के एक्सपीरियंस लोग शेयर करते हैं, टेड टॉक्स में शेयर करते हैं, वो एक्सपीरियंस सुने तो हम बहुत सारी चीजें हम ओवरकम कर सकते हैं, बहुत सारी एंजाइटी ओवरकम कर सकते हैं। एंड one thing I of course want to tell all of you, inculcate the habit of reading. आप बुक्स पढ़ोगे या आप कुछ भी पढ़ोगे वो आपको एक स्ट्रेंथ देगा, मेंटल स्ट्रेंथ देगा। ये फोन या कंप्यूटर में जो आप कंटेंट देख रहे हो वो आपके दिमाग को एक गुलाम बनाता है, वो आपके एक दिमाग को आइडल करता है और वो आइडली बैठ के वो चीजें देख रहा है। लेकिन जब आप पढ़ाई कर रहे हो, जब आप पढ़ रहे हो तो आपका दिमाग जॉब करना शुरू करता है, ठीक है? तो तब जब दिमाग काम करता है ना तब एंजाइटी लेवल नीचे जाता है। आप अगर एंजाइटी में हो तो पढ़ाई एक ऐसा हैबिट है जो आपका एंजाइटी कम कर सकता है। पढ़ने को आपका हैबिट बनाओ। टेक्स्ट बुक अगर नहीं पढ़ना चाहते हो कुछ और कुछ पढ़ो। सो बट study reading is a very good habit to reduce your anxiety, business anxiety, personal anxiety, in every level, and it's a very good skills to inculcate. I don't know if I made any sense, but इसके ऊपर हम लोग separately बात भी कर सकते हैं जब आप चाहें। Any more questions? Thanks, sir. Most welcome. कुछ भी पूछिए। पता है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए अपनी जिंदगी को कंट्रोल पे लाना, वही इंसान अच्छा एंटरप्रेन्योर बन सकता है जो अपने दिमाग को, अपनी जिंदगी को एक अपने कंट्रोल पे ला सके, ठीक है? और उसके लिए आपको अवेयर होना ज्यादा चाहिए। आपको रीड, आपने पढ़ा होगा
जो अच्छे स्टॉक मार्केट में अच्छे ब्रोकर्स होते हैं, जो अच्छे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वो हर कोई रिकमेंड करते हैं हफ्ते में एक बुक्स तो आपको पढ़ के कंप्लीट करना है, तभी जाके आप अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल स्टॉक मार्केट में अच्छे ब्रोकर बनोगे, या एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बनोगे, या एक अच्छे प्रोफेशनल बनोगे। सो मुझे ऐसा लगता है कि rather than wasting your time in any other platform, कोई भी इंटरनेट में कोई भी प्लेटफॉर्म से किताब, अगर आप किताब पढ़ने का हैबिट बनाओ ना, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन वहां पे लाइज करेगा। बताओ, कुछ भी सवाल पूछो, आई एम देयर टू आंसर यू, कोई भी प्लीज। मुझे पता नहीं, मैंने आप लोगों को, आप लोग जो एक्सपेक्टेशन से आए थे, मैंने वो कहीं से भी वो एक्सपेक्टेशन किसी भी लेवल पे मैं मीट कर पाया हूँ कि नहीं, बट मुझे लगा कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से इन पर्सन 1-to-1 कैमरा में एक दूसरे को देख के हम शायद से अच्छी तरीके से एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे, इसलिए मैंने आज और कुछ ना करके आपसे 1-to-1 बात की। आप लोग अगर चाहो तो हम कुछ और भी डिस्कस कर सकते हैं, या इट्स 7 o'clock, तो विल टेक इट अ क्लोज, क्योंकि सर ने कहा था कि हाफ एन आवर मोर 6:30 में। सो आई हैव टू वैल्यू योर टाइम। मैं तो बक कर ही सकता हूँ, घंटे 2 घंटे 3 घंटे, सो आई हैव टू वैल्यू योर टाइम एज वेल। तो वी कैन टेक इट अ क्लोज, अगर कभी दोबारा मौका मिले तो दोबारा बात करेंगे। नमस्कार। So at the end of the webinar, you want to sum up the things. I think this seminar, we don't have any nice defined, you can say, set of things or expectations कि हमें ये मिलेगा ये मिलेगा. Actually, these are the you can say students of BTech Dairy Technology 4-year program that we are offering, and also we are offering a master's and PhD program at our college. So I think this is the very first time, because it is a under a IDP program of ICR, where these such type of webinars and things are going on. And due to COVID also, these are all online. Otherwise, in the starting, I think 2 or 3 lectures they were offline. And immediately after this pandemic, due to pandemic, lockdown was imposed, and everybody is now, you can say, on Zoom meetings. Other classes are also going on online, even evaluation also. So I think this lecture was maybe held prior, because I was not fully aware about your expertise. So on this entrepreneurship, I think we have 4 or 5 lectures earlier. So this time I just asked my wife Aarti, because Arindam is known to Aarti, because they have served in the same institute earlier. So I request her कि आपको पूछे कि आपके पास टाइम है. I know that you are busy in your consultancy and other works also. So thanks for accepting our invitation. Right, and I think this lecture was no doubt. I was also first time listening to such type of traits that entrepreneur must have inculcate, because earlier whosoever has delivered this lecture on entrepreneurship, they only tell that entrepreneurship is a risk-taking person. I think you have jotted out these 15 points
for a successful entrepreneurship, and you have also emphasized that only 3 to 4 has to be mastered for a successful person in any field of life. So with these words, I think it was a very good interaction, rather, because these are first year, second year, or third year students, not you can say exposed to the business environment, and mostly they are from scientific background, non-medical students, and coming to the data technology aspect, and most of students, they are not exposed to the those type of business environment in which you are dealing with. I think so, because you are totally dealing with the business people, so they have that sense of things. I think so. So, but I think it's a eye opener also, because to be even successful in your student life, one has to be disciplined first and foremost, which our teacher also used to say, that first thing is to be a self-disciplined person, and then follow the timeline. In business, we say time is money, but I think it's a very true term. Value has a money. You can say time has a value. It may be in a knowledge term, or it can be in money terms in business. So time is money, no doubt, because they are paying the fee to the college. If they are wasting their time, it means they are wasting their fee also. They are not utilizing properly, right? So with these words, I thank you very much, Arindani, to give your consent at such a short notice. No doubt that is a very short notice for you. I think so. I would also like to thank my Vice Chancellor of the University, Dr. Inderjit Singh, for his leadership and encouraging such type of webinars for the, you can say, benefit of the students. Then I would also like to thank Dr. SPS Ghumman, who is Dean College of Veterinary Science and Principal Investigator or PI of this IDP project. I would also like to thank my Dean of the college, Dr. Ramneek, who is very, you can say, good person at heart. He's very good person who gave us such a, you can say, a good environment for working also. Then I would like to thank IDP team, and particularly Dr. Tejeshwar Preet, who is hosting this webinar. And I would like to thank my colleagues, Gushan, Narinder, and Dr. Nitin, Dr. VP Singh of IDP team, and all my other colleagues of my college who are encouraging the student to come at this time of, you can say, day, which is, you can say, after the hectic day of their academic schedule, still they have to attend the such type of talks, because this is the time, I think, where most of the people are free to attend, and they can sit at a stretch of 1 hour or 2. Otherwise, during the 9 to 5, we ourselves are not free for such a long time. So specifically, we have taken this slot of 5:30 and onwards. So at most, you can say, heartfelt thankful to my students who have spared their time, and they were listening to such a nice talk. And at the same time, I also like ICAR for providing such platform to the students and faculty to interact with, you can say, experts across the field, and even worldwide experts can be called upon for this such type of webinars. And not last but not the least, all my colleagues who have supported me in, you can say, hosting this webinar. I thanks one and all once again, and Rindamji, special thanks to you again. Right? So I would ensure that sometime we would have another talk from your side, because you are from the totally business side. Now I would like जो हमारे final year student है, they should be exposed to the such type of activities, how to write DPRs for a bankable projects, because this is also one of the component under their
experiential learning training. So there's 6 months. So मेरे पास basically I also get into the technicalities of any entrepreneurship, but when you said that the students are from first year to fourth year, so it Right. was for me to get into one platform, getting them to one platform, and we are from different industries. I'm from a business industry, they are from dairy industry, so to get them into one platform, so I thought of talking about simple life skills rather than getting into technicalities. So I'm sorry if I didn't match the expectations. नहीं, नहीं, Sorry. don't be so, don't